हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आप अपने घर पर रह करके अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट योर एनुअल एग्जामिनेशन इज very near now, and you are preparing hard at your home, and you are already touched in subject teachers to ask your doubts. Okay, students. So right now, the motto of this video to have a proper revision from the beginning, right? So with this motto, I am just going to start this video for chapter number 3, and the name of the chapter is formulas and function. Okay, we'll have the proper online revision with the practical demonstration, right? So students, let me introduce myself. I am Viren, your computer science teacher, and I am here to give you a most important revision session based on Microsoft Excel, right? So whatever the chapters coming in your annual examination, just try to prepare in a thorough way, okay? Because as you know that the questions can come from the exercise or maybe can come from the mid of the exercise, okay? So to have the content that what things are included in this video, we are going to have a look. These are the topics: formulas in Excel, creating a basic formula, using a compound formula, and lastly using formula on text. These are the things we are have to include in this video. Okay, so I request you to please don't skip any part of this video, because each and every topic is revised in a very thorough way. ओके, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आराम से आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है। किसी भी पार्ट को स्किप मत करिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, सो आप सभी को ये जितना अच्छी तरीके से हो सके आप इस वीडियो को कई बार देखिए, इतनी अच्छी तरीके से रिवाइज करिए कि आपको बिल्कुल माइंड में अच्छे से याद हो जाए। और इस वीडियो को देखने के साथ साथ मैं आपको एक मोटो देता हूँ कि आप सभी को पता है, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए आप। ओके, सो इस मोटो के साथ अब मैं आपको बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अपने लैपटॉप पे ले चलता हूँ मैं, और एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को मैं आपको प्रॉपर रिवीजन देने की कोशिश करूंगा। सो देख इस बात की, प्लीज कम टू माय लैपटॉप। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों का एनुअल एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, और ये वो क्रूशियल टाइम है जिस समय आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें अपने एग्ज़ाम के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, अपने हर चीज़ के लिए। सो स्टूडेंट्स, आज से और अभी से हम अपने इस कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए जो रिवीजन वर्क है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों का जो सिलेबस है वो आपको व्हाट्सएप के ज़रिए बता दिया जाएगा, और आज जिस चैप्टर की मैं रिवीजन करने जा रहा हूँ या रिवीजन कराने जा रहा हूँ आपका, वो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3, formulas and functions. Okay students, so in this what topic we are going to cover? As you know that, as I've already told you, that we are going to cover here what is formula. First we are going to understand, then after how to use the formula in Excel. This is we have to understand here. After that, how to create the basic formula and how to create the compound formula. Okay, and
if there is a video is not too long, we'll also cover using formula on the text. Okay, so these are the topics. For the revision we are going to understand it. हम इन तीनों टॉपिक को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. सो अब मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, और इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ पिक्चर्स की हेल्प ली है और कुछ बने बनाए डेटा की मैंने हेल्प ली है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट स्किप एनी ऑफ द पार्ट. ओके, यू हैव टू वॉच फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द लास्ट. एनी पार्ट, इफ यू मिस एनी पार्ट देन मे बी यू विल लूज योर मार्क्स, राइट. तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. So first of all we have to understand what is formula. Okay, formula है क्या? Let me show you one diagram for you. It is taking a little bit of time. Now it's open now. So this is the one kind of details regarding elements of formula. Okay, so as you know that the elements of formula, various things are there. And before proceeding you should know about what is formula. Formula is nothing but it's a combination of variable, constant, operators, right? This is the combination. Now once anybody asks you the definition for this, then you will tell that the formula is nothing but it's a user defined functions. Yes, मतलब क्या हुआ कि ये वो फंक्शन है जो यूज़र खुद ही डिफाइन करता है कि अगर आपको दो नंबर जोड़ना है तो उन दो नंबर को जोड़ने के लिए जिन जिन सेल्स का आप यूज़ करोगे, आप उन सेल्स का यूज़ करके उसमें बीच में ऑपरेटर्स लगाएंगे आप. ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रहे यहाँ पर. सो जो कंप्लीट डेफिनेशन इज, इट इज़ द यूज़र डिफाइंड फंक्शन इन विच इज़ यूज्ड फॉर calculation purpose, right? So students, now let's come to the elements of the formula. Okay, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि फॉर्मूला को किस तरह से यूज़ करना है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं या फिर उनके जो डेफिनेशन फार्मूला को वो क्या है. चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा जो एलिमेंट्स है क्या क्या है. जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पर A2, B2, E3, E5 ये चार चीज़ें सेल एड्रेस हैं. ये क्लियर हुआ? ये चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 5 ये अकेला एक नंबर है ये, और इसी तरह से हर एक नंबर को हम कहेंगे कांस्टेंट. ओके, और जब कभी भी हम फॉर्मूले का स्टार्टिंग करते हैं तो इक्वल टू ज़रूर लगाते हैं. तो आप देख रहे होंगे कि इक्वल टू साइन आपको बताया जा रहा है. इसके बाद आप दिखाई दे रहा है आपको प्लस एस्ट्रिक यानी प्रोडक्शन मल्टीप्लाई करने के लिए माइनस. ओके, तो यहाँ पर जब प्लस एस्ट्रिक और माइनस ये तीनों ही मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ही हैं. ओके, और रही बात आपका सम आपको ये एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन कह सकते हैं आप. और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है E3:E5 ब्रैकेट क्लोज. ये आपका रेंज है, सेल रेंज इसको बोलते हैं. तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो एलिमेंट्स में काउंट हो जाती हैं. बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि एलिमेंट्स ऑफ फार्मूला में देखा जाए चार चीज़ें आपकी यूज़ हो रही हैं. मेनली चार चीज़ें. कौन कौन सी चीज़ें हैं? फर्स्ट वन कांस्टेंट, सेकेंड वन ऑपरेटर्स, थर्ड वन फंक्शंस, फोर्थ वन रेफरेंसेस. रेफरेंसेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ओके, ये चार चीज़ें हैं. अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं. सिंबल जैसे कि प्लस, एस्ट्रिक, माइनस, ठीक है, ये जितने भी आप दिखाई दे रहे हैं सारे ऑपरेटर्स हैं. इनका यूज़ हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए करते हैं. ओके, इसी के साथ आपको जो नंबर्स हैं वो दैट ऑल द नंबर्स आर नोन एज कांस्टेंट. इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर फंक्शंस क्या हैं.
फंक्शंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैंने यहाँ पे जो SUM आपको दिखाई दे रहा है ये एक प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं ये, यानी कि आप ये खुद डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ये सिस्टम ने यानी एक्सेल एप्लीकेशन ने पहले से ही डिफाइन कर रखा है कि एडिशन करने के लिए SUM इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं हम। ओके, रेफरेंसेस का मतलब ये हुआ कि अ सेल और रेंज ऑफ सेल दैट यू वांट टू इंक्लूड इन योर कैलकुलेशन। मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस हैं, कुछ एड्रेसेस हैं जिसको आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे, आपको रेफरेंस कहेंगे हम। ओके, चलिए, ये जो मैंने जितनी भी बात बताई मैंने आपको, ये सारा कुछ जो डिटेल था वो था एलिमेंट्स ऑफ फार्मूला। चलिए अब हम बात करते हैं हाउ टू क्रिएट द बेसिक फार्मूला। मतलब क्या हुआ, फार्मूला देखा जाए दो तरीके का होता है आपका, नंबर 1 बेसिक फार्मूला, नंबर 2 कंपाउंड फार्मूला। ओके, और इन सबको अंडरस्टैंड करने के बाद जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको और भी कई सारी चीज़ें बताऊंगा आपको कि एक्सेल में कॉम्प्लेक्स फार्मूला भी कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखा जाए जो कैटेगरीज हैं, द कैटेगरीज ऑफ फार्मूलाज आर बेसिक फार्मूला, कंपाउंड फार्मूला, ओके, एंड वन मोर थिंग कॉम्प्लेक्स फार्मूला, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम हाउ टू क्रिएट द बेसिक फार्मूला। तो मैं इसको क्लोज करने जा रहा हूँ मैं, और एक शीट आपके लिए मैं ओपन करूँगा, ये दिस वन। सो इट इज़ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू ओपन इट। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ you are able to see here that there is two sheets are there, sheet 2 and sheet 3. Okay, one by one we are going to use that. Clear? चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से बेसिक फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज बेसिक फार्मूला। व्हाट इज बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूला क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं हम। सो बेसिक फार्मूला इज नथिंग बट इट्स अ वन काइंड ऑफ, you can say expression in which only one operator is used. Yes, only one kind of operator is used. Okay, basic formula is the one kind of expression in which one kind of operator is used. Okay, but in compound formula different kinds of operator can be used in one expression, right? सो ये आपका मेजर डिफरेंस है, ये आपका मेन डिफरेंस है ये कंपाउंड फार्मूला और बेसिक फार्मूला में। ओके, सो स्टूडेंट्स जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्लीज़ आप नोट करते रहिए आप। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे हम बेसिक फार्मूला का। चलिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है टोटल, मैंने एक जो टेबल बनाई है इसमें 4 कॉलम्स आ गया। फर्स्ट कॉलम इज सीरियल नंबर, देन सेल्स एग्जीक्यूटिव नेम and month and sales. Okay, these are the 4 columns. Okay, so right now suppose we want to find out that what are the total number of sales is happened during each month. मतलब टोटल हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर हर एक मंथ में जो आपका सेल्स हुआ वो कितना हुआ। ओके, हम बात करते हैं पहले अक्टूबर की और फिर बात करेंगे हम नवंबर की। ओके, सो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ मैं एक क्या करता हूँ, यहाँ पर एक टेबल एक रो में क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि एक उसी में ही मैं आपको दिखा सकूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, एक पे यहाँ लिख देता हूँ टोटल, और इसके बाद इस सेल में हम निकालेंगे रिजल्ट। इसी के साथ ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हम निकाल देंगे यहाँ पर टोटल। ओके, टोटल फॉर नवंबर। ओके, और यहाँ पर लिख देते हैं टोटल फॉर अक्टूबर। चलिए इसी के साथ अब हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए, अब ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले हमने यूज़ किया इक्वल टू साइन को। इक्वल टू साइन में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि कुछ नंबर्स को अब हमें ऐड करना होगा कुछ, और जैसे ही मैंने इक्वल टू साइन टाइप किया आप देखेंगे फॉर्मूला बार में 2 बटन्स हाईलाइट हो गए। एक ये जो बटन है आपका कैंसिल का बटन है, और ये आपका इंटर बटन है ये, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका फंक्शन इंसर्ट करने के लिए है ये। ओके, 3 बटन आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, कैंसिल, इंटर और फंक्शन। ठीक है,
चलिए अब हम एड्रेसेस को ये ले लेते हैं, कौन कौन से एड्रेसेस ले रहे हैं। तो अब आप माउस की हेल्प ले सकते हैं और कीबोर्ड की हेल्प ले सकते हैं। अब मैं कीबोर्ड की हेल्प नहीं जा रहा हूँ मैं। चलिए देखते हैं कि ये जो आपका है इसका एड्रेस क्या है। इसका एड्रेस है D2। ओके, अब हम लगाएंगे यहाँ पर प्लस, उसके बाद D3, उसके बाद प्लस, फिर D4, और यहाँ पर अब आपका ये तीनों ही सेल्स आपके ये एड्रेसेस लिखे जा चुके हैं। नाउ वी हैव टू प्रेस एंटर बटन टू हैव द रिजल्ट। और यहाँ पे रिजल्ट पाने के लिए ये जो आपका इंटर ऑप्शन है फॉर्मूला बार में, इसको भी क्लिक कर सकते हैं आप। जैसे देखिए मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ हमने क्लिक कर दिया और ये आ रहा आपका रिजल्ट। अब मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ मैं, ताकि आपको जो रिजल्ट है वो प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो जाए। ओके, लेट मी बोल्ड इट। ठीक है, ये रहा आपका रिजल्ट। चलिए ये रहा आपका रिजल्ट। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और जो मैं आपको समझाने वाली बात है वो ये है कि जब हम फॉर्मूला को देख रहे हैं, एक ही तरह के ऑपरेटर्स को यूज़ किया गया है, इसीलिए हम इसको कहेंगे बेसिक फॉर्मूला। चलिए इसी तरीके से अब हम निकाल लेते हैं आगे की बारी, यहाँ की बारी निकाल लेते हैं हम। फर्स्ट यू पुट इक्वल टू साइन, देन एड्रेस फॉर दिस इज D6, ओके, प्लस D7 प्लस D8। okay, now press enter button, okay, and same way just it will be need to do highlight here, so you can able to see proper way, okay, see. So this is the use of basic formula, okay. In this way you can have your result, and please ensure that only one kind of operator is used here. It's clear? चलिए लेट्स यूज व्हाट इज कंपाउंड फॉर्मूला। ओके, ये मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया है आपको बेसिक फॉर्मूला के बारे में। बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम निकालेंगे, अब किस तरीके से अब हम कैलकुलेट करेंगे आगे की चीज़ों को। अब हमें यूज़ करना है यहाँ पर कंपाउंड फॉर्मूला को हमें यूज करना है, ठीक है। चलिए यहां पर अब मैं लिखने जा रहा हूं मैं 10% ऑफ सेल्स, ओके, 10% ऑफ सेल्स, ठीक है। मुझे यहाँ पर 10% निकालना है, इसलिए मैंने 10% के लिए एक नया कॉलम बना दिया। चलिए 10% कैसे निकालेंगे, 10% निकालने के लिए पहले मैं लगाऊंगा यहाँ पर इक्वल टू के बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा आपका इसका एड्रेस। सो ये जो एड्रेस हो गया L2, इसके बाद इंटू के बाद 10 के बाद परसेंट साइन। ओके, चलिए इंटरप्रेस करते हैं, देखते क्या होता है। देखिए ये रहा आपका 10%। अब आपको कुछ करना नहीं है, ये रहा आपका फिल हैंडल, एंड जस्ट यू हैव टू ड्रैग लाइक दिस, you will easily get the result. Okay, now again you will type here same thing here, equal to, then you will put here one address here L6, then into, and then after you will put 10% here, then enter. So this is the 10% now. So right now still you have used the formula, and you have used here only asterisk. Okay, still it's a basic formula. Okay, and we need to understand how we are going to able to understand about the your compound formula, right? So for this I'm going to use the different operators here. Okay, so we'll get the result here, equal to sign. Now I want to add all these numbers. Okay,
So for adding it, what you'll do here, select this one, press plus sign, then this one, again press plus sign and select this one. After that, put one bracket here, then bracket is already there. Now use here asterisk, then 10%. Now finally you are able to observe here that this formula consists of two operators. One is plus and second one is asterisk. One is plus and second one is asterisk. Okay, now let's see what will happen if you press the plus, if you press the enter button. Okay, see, this is the result you get here. Okay, so right now what he has done, first they add the number and then immediately after addition they will have the 10% of that number. Okay, so let's try the same formula in different one. Okay, see, like this here. I think some mistake is happening here. Let's press enter, then copy here and then paste here. See, right now there is different result came here. So let me highlight it so that you can able to view the each and everything. See, so two different results you get here, right? And in this we have used here some different formula, and this is the known as compound formula. So only the main difference is the particular formula consists of more than one kind of operator in the formula, and in one basic formula only one kind of operator is used in the expression, right students? So I hope you are able to understand each and everything. And but students, if you have any kind of query, okay, so I request you to please don't hesitate to ask me. Okay, please don't hesitate, I'm always here to help you, right? चलिए अब हम बात करते हैं इसके अलावा कॉन्कैटिनेशन के बारे में, कि किस तरीके से कॉन्कैटिनेशन करते हैं. सो अभी तक मैंने आपको जो डिस्क्राइब किया है, ये रहा आपका कंपाउंड फॉर्मूला, ये रहा कंपाउंड फॉर्मूला के बारे में, ठीक है, और ये रहा आपका बेसिक फार्मूला के बारे में सेम एक्सेल शीट में. और अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कॉन्कैटिनेशन, ठीक है. यानी कि अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, हम ये सीखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू ऑपरेट अ फॉर्मूला ऑन द टेक्स्ट, किस तरीके से हम टेक्स्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पर. और वही टेक्स्ट आपका आएगा, कब आएगा, जब आप यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन करेंगे. फॉर्मूला का ही यूज करेंगे अब, लेकिन हम टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे यूजिंग फॉर्मूला ऑन द टेक्स्ट. तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज कॉन्कैटिनेशन. सो कॉन्कैटिनेशन इज द प्रोसेस. कॉन्कैटिनेशन क्या है, एक तरह का प्रोसेस है. इस प्रोसेस में हम यहाँ पर जो सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, एक एक शब्द लिखा हुआ है या जो भी लिखा हुआ है, उन शब्द को हम ऐड करेंगे हम. क्योंकि अभी तक तो आपने सुना था कि नंबर्स को ऐड करने के लिए, लेकिन अब हम कुछ ऐसे फॉर्मूला का यूज करेंगे जिस तरीके से हम टेक्स्ट को भी हम ऐड कर सके हैं. सो इट इज द प्रोसेस टू ऐड द टेक्स्ट, राइट. और यहाँ पर एक स्पेशल सिंबल का यूज करेंगे हम. उस स्पेशल सिंबल का नाम है, %. क्या नाम है उसका, %. ठीक है, उसका नाम होगा %. इसकी बात कर रहा हूँ, ये रहा है आपका %. ओके, चलिए. सो अब हम समझते हैं कि किस तरीके से यूज करेंगे यहाँ पर हम. अब आपको ये समझना है यहाँ पर कि whenever we are doing the concatenation, at the time of concatenation don't use the operators like plus, minus, asterisk, division,
Okay, don't use it. Only one kind of symbol we are going to use, that is ampersand. Okay, चलिए let's understand how we are going to perform this. चलिए suppose करिए I have written here KIPS, KIPS, right? And in this cell I have written here India, KIPS India. Two texts are written in different cells, right? So how we are going to concatenate, how we are going to add this? Okay, suppose we want the result here, we want the result here. So what you'll do here, just press equal to sign and we'll keep the address of this one, that is B14. Okay, and then we'll put one ampersand here, we'll put one ampersand here and put the address of this one also. Okay, B14 and C14. Now if you press the enter button, then we have to understand what will happen here. Okay, let's press enter button. Yeah, see, the result is in front of your screen. Okay, let me highlight it. See, you are able to see the result here. See, see the formula bar, I have written B14 and C14 equal to is preceded by this. Okay, and the KIPS India is all. But right now you are able to see that in between of KIPS India there is no space. How we are going to give you how we are going to give a space between the two words? Okay, and these two words written in different cells. Okay, so you need to change the formula. How we are going to change it? Okay, let me show you. Okay, what we'll do here, first we put equal to sign. After that we will write B14. Okay, this is the address. Then put one ampersand here, and after ampersand you will put this sign. This is the double quotation mark. Then put one space, put one space again. You have to put this sign, and now put one ampersand. And what is the address of this? That is C14. C14. See, now you will immediately get one of space here. Okay, see the formula here. I have written here B14 and double quotation mark. Okay, now again I have to start the next one, double quotation mark, ampersand and C14. Okay, if you press the enter button, immediately you will have this kind of result, right? So students, I hope you are able to understand each and everything. So right now whatever the contents today I have delivered, okay, just try to understand. Okay, watch this video many times, and if you have any kind of query, just get in touch with me. Okay, okay students, I hope you have understand each and everything what I have tried to explain in this video. But students, if you have any kind of query, any kind of problem, just ask me. Please don't hesitate. Okay, I am always here to give you all kind of support, right? और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी ने मेरी इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखा, आपने कमेंट्स दिए, अपने फीडबैक दिया, ठीक है। मैं फिर भी चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को कई बार देखें, ताकि आपका इतना अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए कि आपको किसी भी तरह का मार्क्स रिडक्शन ना हो पाए। सो इसी के साथ अब समय है आपको वीडियो से विदा लेने का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप इन टच विद मी, कीप इन टच with your subject teacher, and always help each other. Keep smiling, keep healthy. Thank you so much.